Assalamu alaikum. I am Fakhra Hussain. My roll number is EP1770033 and my topic which I would have to be discussed is the obsessive compulsive disorders. So you can see these pictures. The first question which have to be arise is what is obsessive compulsive disorders? Uh, I would have to be explain these obsessive compulsive disorders. This is obsession and compulsion. So, this obsession is an anxiety provoking and persistent ideas, thoughts, impulses, or images. And the compulsion, repetitive behavior or mental acts that reduce anxiety or prevent some future events or situations. So, by combining these two words, I can say that this OCD is an anxiety disorder characterized by unreasonable thoughts and fear that lead you to do repetitive behavior. यानी कि अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो इस तरीके से कह सकती हूँ कि ऑब्सेशन जो है वो क्या होती है कि ऐसे आइडियाज़ और ऐसे इमेजेस या ऐसे ख़यालात माइंड में जनरेट होने लग जाते हैं जो क्या करते हैं जो विच लीड टू एनजाइटी. सिमिलरली कंपल्जन, अगर मैं कंपल्जन कहूँ तो इसका मतलब ये है कि एनजाइटी को रिमूव करने के लिए बार बार एक ही एक्शन को परफॉर्म करना ताकि एनजाइटी रिड्यूस हो सके. सो दिस इज कंपल्जन. Now you can see in this picture, so I can say that in obsession, for example, we have a balloon and we have to put the air in a balloon. So at that time the size of the balloon is to be increases, and when we have to remove the air from this balloon, so the size of the balloon is reduces. So similarly, I have to compare this balloon from obsession and compulsion. Means in obsession we can say that the something is glow in your mind, build and build, and at the time you have to come, you can't understand what to be happen. And compulsion is begin. It's mean the something is do which reduce the stress. Now you have to see this is the cycle of OCD. For example, this is start from obsessive thoughts and it leads to anxiety. In now the compulsive behavior have to be occurred, and the you have to feel the temporary relief. Similarly, we have to see the some symptoms, yes, some major symptoms in OCD patients, like for example, like cleaning, hand washing, इसके अलावा checkers repeated, like oven turned off, on door locked, etc. And that they associated with harm or danger. Similarly, I can say in OCD, doubters, like if everything is not perfect or done, just like right, something terrible will happen. I can also say that in OCD, counters and arrangers are obsessed with order and symmetry. Similarly, superstition about certain numbers, colors, or arrangements. So this is the examples for OCD. Now the question which have to be arise, what would be happen, means ऐसा क्या होता है OCD में जिसके बिना पे जो ब्रेन है या जो इम्पल्सेस है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होने लग जाते हैं. For example, you have to see these pictures and I can explain these pictures. We have to say we have to image that imagine each part of a brain is like that, different building blocks, and this building is connected by the pathways, and only pathway that is the messengers or that carry information between buildings. So there is some evidence in the people having OCD. The chemical messenger of the brain are too much excited. um,
too much excited there and causing a fear that are in danger. That's something bad about what happened. By taking medication and therapy that will slow your messenger down, that have more control with the thoughts, images, or you choose with that of them that will control your both like obsession and as well as compulsion. So the treatment which have to be provided in OCD, both medication and behavioral therapy have to be assigned. So behavioral therapy is vitally important for OCD, and the combination of drug plus behavioral therapy provides optimal treatment. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो मेडिकेशंस आती हैं जो हम OCD में प्रोवाइड करते हैं पेशेंट के लिए, उनमें जो है वो है क्लोमिप्रामीन एंड SSRI. And in this SSRI, we have to be included fluoxamine, fluoxetine, paroxetine, sertraline. So these five medication are approved by the FDA for treatment of the OCD. When we are talking about the citalopram, so this citalopram are effective, but there is less evidence to support their use. So there is no strong evidence that any SSRI more effective. And we can say that the SSRI is the more effective for treating an OCD. कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो जिनमें हमें जो है वो पार्शली जो है रिस्पॉन्स मिल रहे होते हैं, तो लिहाजा हम क्या करते हैं कि ऐसे पेशेंट में हम SSRI और क्लोमिप्रामीन इनका कॉम्बिनेशन देते हैं. लेकिन हमें इनके कॉम्बिनेशन देते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो ड्रग की जो इंटरेक्शन है वो भी पता होनी चाहिए ताकि जो है वो ये टॉक्सिसिटी लीड ना कर जाए. नाउ यू हैव टू सी द केस स्टडी. यहाँ पे जो है वो एक केस स्टडी है जो मैं डिस्कस करूँगी. फॉर एग्जांपल इस केस स्टडी में जो है वो खातून है जिनमें जो है वो OCD की जो भी सिम्टम्स है वो पाई गई हैं. और फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू हर हस्बैंड, because the main symptom which have to be seen in this patient, takes 4 time showers each day and spend 1.5 hours a day cleaning. Similarly, she admitted that sleep, but she has a stable urge to make sure that both she and her surrounding are completely free of germs. So these are the major symptoms which have to be seen in this type of the case study. And the physician have diagnosis is the OCD. So the question which have to be arise, what clinical features of OCD does RJ display and how can her symptoms be objectively evaluated? So we have to be provide the assessment. This assessment we can in this assessment we can say that the RG display obsession of contamination and pathological doubts and compulsion of excessive cleaning and washing. These symptoms are time consuming. So these symptoms have to be shown that these are the OCD patients. Similarly, हमारे पास जो है वो एक स्केल भी आती है जिनमें हमारे पास इंक्लूड है येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल्स. ये जो है वो मेन टूल है फॉर द इनिशियल इवैल्यूएशन ऑफ दोज पेशेंट हु हैव द सिम्टम्स ऑफ OCD. So in this scale we have to see that if the scores have to be greater than 15, so we can say that the significant obsessive compulsive symptoms have to be done. The second question which have to be arise on the assessment, for example in this patient we have to see that the score is found to be 33 and her physician prescribe, यानी कि जो physician है उन्होंने जब ये चीज़ें कंफर्म कर ली और उनके अंदर जो स्कोर हमें मिला है वो 33 तक मिला है, जो इस बात को एश्योर करता है कि ये OCD पेशेंट है. और इसके अलावा क्या है कि जो फिजिशियन है उन्होंने इन्हें जो ड्रग प्रिस्क्राइब की है वो है फ्लॉक्सामीन, और इंस्ट्रक्ट जो किया यानी कि जो डोज इन्हें फिजिशियन ने प्रोवाइड की है 100 मिलीग्राम फॉर 1 वीक एंड 200 मिलीग्राम इसके बाद. तो इनमें इनिशियल चॉइस, इसके अलावा इनके साथ साथ जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी प्रोवाइड की गई है इन्हें. लेकिन क्या है कि इनिशियल चॉइस ऑफ थेरेपी एप्रोप्रिएट है या नहीं, सवाल ये पैदा होता है. तो क्या कहूँगी कि ये एप्रोप्रिएट नहीं है. कैसे नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो डोज प्रोवाइड की गई है वो करेक्ट अमाउंट में नहीं है. जो डोज इंक्रीज़ हम करते हैं 50 मिलीग्राम एवरी 3 to 4 days अकॉर्डिंग टू पेशेंट टॉलरेंस.
यानी कि पेशेंट कितना टॉलरेट कर सकता है। यानी हम डायरेक्ट 100 मिलीग्राम नहीं एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, बल्कि हम 3 डेज़ तक 50 मिलीग्राम देंगे और फिर आफ्टर 3 to 4 डेज़ हम फिर 50 देंगे, ताकि वो 100 को कैरी कर ले। और फिर देन हम क्या करेंगे, 200 मिलीग्राम पर डे हम उन्हें डोज प्रोवाइड करेंगे, और फिर इस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिमाइज़ करेंगे डोज को, विच लीड टू द 300 मिलीग्राम पर डे। सो वी कैन से डैट कि इन्हें जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो इनिशियल थेरेपी प्रोवाइड की गई है वो अप्रोप्रिएट नहीं की गई है। ठीक है जी। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट पेशेंट काउंसलिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइड टू आरजी कंजक्शन एंड व्हाट द प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट। यानी कि जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो क्या देखे जाते हैं इनमें, और किस लिहाज से जो है वो हम इन्हें या पेशेंट को जो है वो उसकी काउंसलिंग की जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि हमें इन्हें एजुकेट करना है, जो पेशेंट है इन्हें एजुकेट करेंगे अबाउट द पॉसिबल फ्लॉक्सामीन साइड इफ़ेक्ट्स रिलेटेड। यानी कि क्योंकि हमें फ्लॉक्सामीन में जो साइड इफ़ेक्ट मिल रहे होते हैं उसमें नॉजिया, सेडेशन, सोमनेस, हेडेक वगैरह इंक्लूड है। तो इन्हें क्या करेंगे, हम इस बारे में एजुकेट करेंगे। और इसके अलावा जो मेडिकेशन है जो इन्हें प्रोवाइड की जाएगी वो फूड के साथ, यानी कि इन्हें फूड के साथ उस मेडिकेशन को लेनी होगी, ताकि जो एडवर्स इफेक्ट मिल रहे होते हैं या जो साइड इफ़ेक्ट जो मिल रहे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा या जो है वो रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा जो है सिमिलरली ड्रग इंटरेक्शन भी हमें देखना होगा, ताकि कोई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना हो पेशेंट के अंदर। इसी तरीके से patient should be encouraged to report any problem to their treatment provider. So the importance of adhering to prescribed therapy, both pharmacological and behavioral should be stressed. यानी कि हमें इन चीज़ों को देखने के बाद हमें फार्माकोलॉजिकल और बेवल थेरेपी दोनों प्रोवाइड की जाएगी। यानी सिर्फ ऐसा नहीं किया जाएगा कि हम सिर्फ मेडिकेशन जो है वो चेंज करें या सिर्फ मेडिकेशन प्रोवाइड करें और बेवल थेरेपी को रोक दें। हमें इसके साथ साथ इनकी बेवल थेरेपी भी लेके चलनी होगी। नाउ द हियर द क्वेश्चन विच हैव टू बी अराइज के इन्हें जो फ्लॉक्सामीन की जो डोज दी गई है वो 200 मिलीग्राम दी गई थी, और जो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेडिकेट मतलब टॉलरेट कर लिया इस मेडिकेशन को। लेकिन ये जो है वो ये चाह रही हैं कि ये स्विच ऑफ करना चाह रही हैं, यानी कि स्विच करना चाह रही हैं यहाँ से इस मेडिकेशन से। और शी ऑल्सो आस्क्ड टू बी गिवन सम Xanax टू हेल्प calm her anxiety during behavioral of acting for RG at this point। यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है वो आस्क टू बी सम गिवन Xanax टू हेल्प, मतलब कि ये स्विच करना चाह रही हैं क्योंकि इन्हें जो है वो एडवर्स इफेक्ट की वजह से दूसरी मेडिकेशन में ये जाना चाह रही हैं। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर आरजे, मतलब इस पॉइंट पे हम इनके लिए यानी ये जो पेशेंट है इनके लिए क्या एक्शन हमें लेना है। तो स्विच करना मेडिकेशन का ये हम रिकमेंड नहीं करेंगे, यानी हम इन्हें Xanax जो ये लेना चाह रही हैं हम इन्हें नहीं प्रोवाइड करेंगे इस पॉइंट पर, क्योंकि इनकी बॉडी में जो है वो फ्लॉक्सामीन वो क्या हो चुका है, मतलब काफ़ी वेल टॉलरेट हो चुका है और इनमें जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। तो लिहाजा मेडिकेशन को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे फॉर एटलीस्ट अनदर 4 weeks, एंड एडिशनल counseling information should be provided to this patient to emphasize the gradual response to treatment in OCD। और फिर क्या करना है, हमें फ्लॉक्सामीन की जो डोज है उसको इंक्रीज़ करवा देना है। फॉर एग्जांपल 250 कर देंगे 200 से, और फिर इस 250 से 300 मिलीग्राम हम कर देंगे, यानी इसकी जो डोज़ है जो फ्लॉक्सामीन की हम उसकी डोज को बढ़ा देंगे, हायर करते चले जाएंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि कुछ पेशेंट में जो है वो ज़्यादा फ्लॉक्सामीन की ज़्यादा डोज पे जो है वो एक्शन प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से फंक्शनल इम्पेयरमेंट आफ्टर 10 to 12 week ऑफ हायर डोज फ्लॉक्सामीन थेरेपी, चेंज इन थेरेपी, स्विच टू अनदर SSRI will be indicated। So anxiety response is integral to the therapeutic benefit of behavioral therapy।
नाउ द क्वेश्चन विच हैव टू बी अराइज, यानी कि 5 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद ये जो पेशेंट है ये हैप्पी हैं और इन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि जो OCD है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो गई है, मतलब इम्प्रूव्ड हो गई है। तो अब क्या हम रिकमेंडेशन होगी इन पेशेंट के लिए, यानी कि आया हम अपनी जो मेडिकेशन इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी थेरेपी इन्हें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या हम वहाँ पे स्विच कर देंगे या फिर हम कोई दूसरी मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो हमें करना क्या है कि इट इज़ करंटली रिकमेंडेड दैट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर OCD बी कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, यानी 1 साल तक जो है वो हमें ये जो इनकी थेरेपी है उसे बरकरार रखना है। अलबत्ता जो डोज़ है हम उस डोज़ में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमी ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यानी हम 300 तक रख रहे थे तो हम 300 से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लो कर देंगे, यानी कि डिक्रीज़ कर देंगे डोज़ को, लाइक 150 मिलीग्राम पर डे इस तरह कर देंगे, ताकि जो उनकी जो थेरेपी है वो मेंटेनेंस रहे। इसी तरीके से 1 ईयर तक जो है वो इनकी जो थेरेपी है या फिर जो भी चल रही है उस मेंटेनेंस थेरेपी वो मेंटेन रखी जाएगी। और फिर इसके अलावा क्या करेंगे कि जो हमारी जो मेडिकेशन है, जो भी डोज़ वगैरह है, उसको हम अप्रॉक्सीमेटली 25% तक जो है वो डिक्रीज़ कर देंगे इन एवरी 1 to 2 मंथ। और फिर कंटिन्यूअसली जो है वो इस मंथ के दौरान जो है वो उन्हें मॉनिटर किया जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अचानक से जो है वो जो हम मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिसकंटिन्यू कर दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि विड्रॉल सिम्टम्स के चांसेस हो सकते हैं, यानी विड्रॉल सिंड्रोम्स अपीयर्स हो सकते हैं that follow the abrupt discontinuation of a drug that has the capability of producing physical dependence. Now these are the references from which I have to be discuss this topic. Thank you.